Good morning, dear students. My name is Sudhi Shukla. I used to teach the subject electronic devices. Dear students, hope you are well now these days. So let's start our discussion. During our previous discussions, we have covered a lot of topics related to the semiconductor. And knowing the properties of the semiconductor, we have also come to know, we have started to look up towards the various type of electronic devices. Dear students, among which we have gone through normal PN junction, that is diode, and about the Zener diode, and about the Schottky barrier diode. I have told you during the discussions what are the reasons behind the existence of Zener diode. Why that needs that applications are not fulfilled by the normal diode or PN junction diode. Why we have gone through the Schottky barrier diode. What are the reasons that the applications which are not performed by normal PN junction diode that are basically fulfilled by Schottky barrier diode? Means we have started through the normal PN junction diode, among which we found various type of drawbacks, that during the reverse bias, if we are going to increase the voltage, somehow that device, electronic device, that is normal diode, burn out. For that we have a new electronic device, that is what? Zener diode. And when that normal diode is operated at a high frequency, that diode is not working properly, that doesn't provide us the proper rectification. For that we have used the Schottky barrier diode, which are able to rectify the signal, that is from AC signal to DC signal. That rectification is done properly by using the Schottky diode or the Schottky barrier diode. तो इन डिवाइसेस के बारे में हमने देखा. सिमिलरली, अगर among these either PN junction diode or Zener diode or Schottky diode, अगर हम उसमें similarities देखें तो we will find lot of similarities, among which there is a one thing which was prior, that about the junction, because the formation of junction is very must. जंक्शन का होना, जंक्शन का फॉर्मेशन, जंक्शंस का ब्रेक होना, these are all related to the junctions. इसके लिए हमें काफी केयरफुल होना होता है about their formation or about their destruction, means related to the junction. तो वहां पे जो similarities थी among those devices, that was we found single junction, एक जंक्शन होता था. Either we are using metal or type of semiconductor, either we are using type of semiconductor N or P, तो वहां हमें एक जंक्शन मिलता था. But dear students, now today we will have a look for a new type of electronic devices that is very much important for this domain, semiconductor based devices or for electronic devices. That was basically nothing but the transistor. Let me write here first of all, transistor. Dear students, आज हम देखेंगे about the transistor. This transistor is also an electronic device. अगर हम देखें डिजिटल सर्किट्स में, so this transistor will work as a switch, and if we have our look in the analog circuits, we found this transistor as an amplifier. तो वो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन चाहे वो एज ए स्विच हो
या एज ए एम्पलीफायर हो, हम डिफरेंट डोमेन्स में पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि स्विच की तरह से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर ट्रीट करा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली द बेसिक एप्लीकेशन फॉर दिस ट्रांजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो इस ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस ट्रांजिस्टर की भी जो फॉर्मेशन है, दैट इज विद द यूजिंग सेम द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आइदर एन और पी, लेकिन हम उनके कॉम्बिनेशन से फॉर्म करेंगे। एंड वी हैव अ लुक, वी विल डिस्कस कि किस तरह का उनका कॉम्बिनेशन होगा, सो दैट वी कैन ऑपरेट दैट डिवाइस एज ए ट्रांजिस्टर एंड वी कैन टेक द डिफरेंट एप्लीकेशंस। हम इनके ऑपरेशंस भी देखेंगे, इनकी VI कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, एंड आफ्टर इट ऑल वी विल हैव अ लुक टुवर्ड्स दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू draw a flow chart for this transistor family. इन ट्रांजिस्टर की एक फैमिली है, एक फ्लो चार्ट है। हम पहले उस फ्लो चार्ट को बनाएंगे, आफ्टर इट ऑल वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो लेट मी, डियर स्टूडेंट्स, लेट मी राइट दिस ट्रांजिस्टर इन द सेंटर वे, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हेड है। द हेड ऑफ द फैमिली इज दिस ट्रांजिस्टर। The transistors classification is of basically in two ways. दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजिस्टर का, that is one is BJT and the second one is FET. So this transistor is classified into two types. This is the family chart of the transistor. One is BJT. This is what basically bipolar junction transistor. And the second one is, dear students, second one is FET. This is what? Field effect transistor. Further, this BJT is classified into two types. NPN, and this is what? PNP. NPN BJT, PNP BJT, or simply we can say NPN transistor, PNP transistor. These are the two classifications for bipolar junction transistor. Let us come for the classification of this FET. Dear students, the FET is classified as a JFET and MOSFET. This is what, dear students, this is junction field effect transistor, and this is what? Metal oxide
semiconductor field effect transistor. Dear students, further JFET is taken as depletion type. Depletion type, and this is further classified into two parts. N channel and P channel. Further, MOSFET is classified in two ways. Depletion type and enhancement type. Further, this depletion type and enhancement type again, this is N channel, P channel, again this is N channel, and this is what? P channel. Dear students, this is what the logic, the transistors family. Transistor is classified into broadly two categories. That is what? First is BJT, bipolar junction transistor, and the second one is field effect transistor. This BJT is classified into two types, NPN and PNP. The reason why we say BJT as a bipolar junction transistor, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हम कंसिडर करते हैं, that charge carriers are either electrons or holes, means the current conducted is due to the majority and minority charge carriers both. That's why it is called bipolar junction transistor. And it is further classified into two types, NPN and PNP. This NPN or PNP is nothing but the combination of the types of semiconductor. We will start our discussion for BJT itself. After it all, we will come for the discussion of this FET, field effect transistor. And this FET is called unipolar junction transistor. Likewise, it is called bipolar junction transistor. This is called unipolar junction transistor. In this, the current will be either by the majority charge carriers or by the minority charge carriers. That's why it is called unipolar junction transistor. This FET is classified into two types, junction field effect transistor and metal oxide semiconductor field effect transistor. This junction field effect transistor works in a single mode. That's why I have written only a depletion type. JFET जो हमारा होता है वो सिंगल मोड में ही वर्क करता है, डिप्लीशन मोड में. But the types are different. N channel depletion type JFET, P channel depletion type JFET. And when we are talking about the MOSFET, dear students, metal oxide semiconductor field effect transistor, that basically works in two mode. दो तरह से होते हैं, depletion type and enhancement type. We will have our discussion. I will upload new videos for FET family also, for BJT family also.
but still we will start our discussion with the bipolar junction transistor. तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर बात डिप्लीशन टाइप की है तो उसमें भी दो टाइप्स हैं, एन चैनल, पी चैनल, और इन्हांसमेंट टाइप की है उसमें भी हमारे दो हैं, एन चैनल एंड पी चैनल. दिस इज द फ्लो चार्ट, ट्रांजिस्टर्स फैमिली फ्लो चार्ट. हेड बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी इज ट्रांजिस्टर, और ये उनकी सब कैटेगरीज हैं, उनके मेंबर्स हैं, इस फैमिली के मेंबर्स हैं ये सारे. एंड यू इन मोस्ट ऑफ द बुक्स दिस type of flow chart is being drawn or mentioned, and few of the books, कुछ ने फेट की क्लासिफिकेशन तीन तरीके से की है, जेफेट, मैसफेट एंड मिसफेट, और कुछ ने मॉसफेट को दो तरीके से बताया है, मिसफेट एंड मैसफेट, MISFET and MESFET. But for our academic point of view, we have our focus on MOSFET, depletion type and enhancement type. So we can generally say N channel depletion type MOSFET or P channel depletion type MOSFET, or simply we can say N channel enhancement type MOSFET or P channel enhancement type MOSFET. So dear students, this is what the flow chart for this transistor. So we will start our discussion with this bipolar junction transistor. हम BJT से स्टार्ट करेंगे. So let me rough first of all this. पहले हम BJT को समझेंगे, its operation, its application. After it all, we will have our discussion for the JFET. बट बिफोर इट हमें देखना होगा कि बाइपोलर जंक्शन है जो ट्रांजिस्टर है, हाउ इट वर्क्स. अगर हम बात बीजेटी की करते हैं तो किस तरह से उसके ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं, किस तरह से उनकी एप्लीकेशंस हम ले पाते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हमें मिलेगा इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट, और अगर हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो वी विल फाइंड ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांजिस्टर कैटेगरी जिसमें हम बीजेटी को देखते हैं, बाइपोलर जंक्शन की बात करते हैं. स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि बीजेटी दैट मींस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. अब वो अगर ट्रांजिस्टर है दैट मींस इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट मींस कि वो डिवाइस ट्रांजिस्टर जो मटेरियल यूज करता है दैट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, जर्मेनियम और सिलिकॉन. इन्हीं दोनों मटेरियल से हम ट्रांजिस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, आइदर फेट और बीजेटी. तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो बीजेटी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको जो हम फॉर्म करते हैं वो या तो एनपीएन की तरह होता है या तो पीएनपी की तरह होता है. बट बिफोर इट वन थिंग आई वांट टू मेक एश्योर कि दिस ट्रांजिस्टर आइदर इट इज बीजेटी और फेट, द ट्रांजिस्टर इज हैविंग टू जंक्शंस, दो जंक्शंस होते हैं इसमें. लाइकवाइज पीएन जंक्शन, जीनर डायोड, शॉटकी डायोड में मैंने बताया सिमिलरिटीज थी कि वहां सिंगल जंक्शन होते थे, एक जंक्शन हुआ करता था. बट इन दिस बीजेटी वी विल फाउंड टू जंक्शंस, हमें दो जंक्शंस मिलते हैं. तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो जब आप नॉर्मल डायोड की बात करते थे जहां पे एक जंक्शन होता था वहां दो सेमीकंडक्टर्स लगते थे एन और पी. जब जीनर डायोड की बात करते थे वहां पे जहां पे एक जंक्शन होता था वहां भी दो तरह के सेमीकंडक्टर्स लगते थे. सिमिलरली इन द केस ऑफ शॉटकी डायोड आल्सो. तो हमने देखा कि एक जंक्शन के लिए दो सेमीकंडक्टर, तो दो जंक्शंस के लिए चार सेमीकंडक्टर. सिंपल भाई, दो सेमीकंडक्टर्स के लिए एक जंक्शन, तो दो जंक्शंस के लिए चार सेमीकंडक्टर. बट सी द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, दिस इज बीइंग सच
ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रांजिस्टर कि दो जंक्शंस होने के बावजूद स्टिल वी आर ओनली रिक्वायर्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। रिक्वायरमेंट हमारी बनती है दो जंक्शंस के अकॉर्डिंगली 4 सेमीकंडक्टर्स की, लेकिन हम 3 सेमीकंडक्टर्स से ही काम चलाते हैं बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, यू टू। तो कैसे, लेट्स सी। मैंने बताया कि बीजेटी में दो तरह के ट्रांजिस्टर एनपीएन एंड पीएनपी। टेक द फर्स्ट केस ऑफ एनपीएन। सी, dear students, this is what junction J1 and this is what junction J2, दो junctions. This is N type semiconductor, this is P type semiconductor and this is N type semiconductor. See, and when I make the contact of this device with the outside world, I will make it lie in this way. From these contacts, we come to know that this device, if it is called a transistor, this can be treated as a 3-terminal device. Dear students, this will be treated as 3-terminal device. एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये वो टर्मिनल्स हैं, ये वो कॉन्टैक्ट्स हैं जिससे हम इस डिवाइस का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन करते हैं। दिस इज व्हाट द फर्स्ट टाइप एनपीएन। लेट मी ड्रॉ द सेकंड टाइप। सिमिलरली जैसा मैंने यहां बनाया, the same way this will also be drawn. P, N and P. Again the junction J1 and J2। एक हमारे पास ट्रांजिस्टर NPN और एक ट्रांजिस्टर हमारा PNP। बोथ आर द टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आइदर NPN और PNP। तो जो ये N और P और N जो 3 तरह के सेमीकंडक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जनरली तो 2 ही तरह के होते हैं N और P, लेकिन हमने 3 जो सेमीकंडक्टर्स लिया है, हम कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं कि वी पुट आइदर ऑफ द सेमीकंडक्टर इन द मिडिल और दूसरे सेमीकंडक्टर्स को उसके साइड में। दैट मीन्स सिंपली कि इफ इट इज द केस ऑफ NPN तो हम P टाइप को सैंडविच कर देते हैं इन बिटवीन दीज टू N। And if we are taking or observing the case of PNP transistor, in this what we do कि N type semiconductor को we are going to sandwich in between the two P type of semiconductors, and by that P और N के क्रॉस जो बाउंड्री है that is junction J1, N और P के क्रॉस जो बाउंड्री है that is junction J2। तो we can say कि if this is a PNP transistor, that means it is having 2 junctions J1 and J2 along with the 3 terminal। NPN हो या PNP हो, दोनों के केस में हमने देखा कि 3 टर्मिनल लगे हुए हैं। इन तीनों टर्मिनल्स के डिफरेंट नाम हैं। दैट इज दिस इज व्हाट एमीटर, दिस इज व्हाट बेस एंड दिस इज व्हाट कलेक्टर। दिस इज व्हाट एमीटर, this is what base and this is what collector।
ये टर्मिनल एमीटर कहलाता है, ये बेस, एंड दिस वन इज कॉल्ड कलेक्टर. Similarly for the PNP, this is called emitter, this is called base, and this terminal is called collector. एमीटर का काम चार्जेस को एमिट करना, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स है उनको एमिट करना. बेस का काम इन एमिटेड चार्ज कैरियर्स को पास करना. सो मे डैट दोज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच आर passed by this base region is being collected at the collector side. कलेक्टर्स का काम क्या है? उन चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना. सिमिलरली अगर वो पीएनपी का है केस तो एमीटर का काम चार्जेस को एमिट करना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करना. बेस का काम उन चार्ज कैरियर्स को पुश करना, और कलेक्टर का काम उन चार्ज कैरियर्स जो कि यहां से आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना. क्योंकि जब तक एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करेंगे, देयर विल बी नो करंट फ्लो अक्रॉस दिस डिवाइस. अगर चार्ज कैरियर्स यहां से ट्रांसमिट होते हैं, यहां पे कलेक्ट नहीं होते हैं, तो देयर विल बी नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस डिवाइस. सो दीज आर द थ्री टर्मिनल्स, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर. और वो दोनों के केस में सेम होंगे. एनपीएन ट्रांजिस्टर है तब भी, और पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो भी टर्मिनल्स तीन ही होंगे, दैट इज एमीटर बेस एंड कलेक्टर. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकी डोपिंग का केस हम लें तो यू विल फाइंड, लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दिस टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस. लेट मी राइट हियर emitter, second one is base, and the third one is collector. Size and doping. These three terminals differ regarding their size and their doping. How? Let me write. Emitter, this is heavily doped. Base, this is lightly doped. Collector, this is moderately doped. Doping, sorry, this is for doping case. And this, let's write this to be a size. Doping, heavily doping is in emitter, lightly base, moderately collector. If we are talking about the size of collector is large, base and emitter is like medium, small. See, अगर डोपिंग का केस लें तो एमीटर हेवली डोप्ड होता है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है, और बेस बहुत कम डोप्ड होता है. वेरी लाइटली डोपिंग होती है बेस में. द रीजन इज कि चार्ज कैरियर्स अगर एमीटर टर्मिनल एमिट करता है और अगर बेस को मैं हेवली डोपिंग कर दूंगा तो यहां पे ही सारा रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, क्योंकि दीज आर अपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. यहां मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, इस पी के मेजॉरिटी होल्स, तो अगर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स यहां चलेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ होल्स उनके साथ रिकंबाइंड हो जाएंगे. और कलेक्टर जहां पे मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स को पहुंचना था वहां पे वो मिनिमम माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर्स पहुंचेंगे, क्योंकि सारे यहां पे रिकंबाइंड हो चुके होंगे. दैट्स वाई हम यहां पे जो बेस की डोपिंग है उसको हम लाइटली रखते हैं और एमीटर की डोपिंग हम हाई रखते हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टर साइड वी पुट द डोपिंग टू बी मॉडरेटली. और अगर हम साइज की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो वी विल सी कि एमीटर का साइज मीडियम होता है, कलेक्टर का साइज लार्ज होता है, एंड दिस बेस इज वेरी थिन. द रीजन इज कि जहां चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट होना है वो स्पेस बड़ा हो, लार्ज हो, और जहां पे कम से कम रिकॉम्बिनेशन होना हो
वहां पे वो स्पेस बहुत थिन हो, कम हो, एंड द रिमेनिंग इज अबाउट द एमीटर टर्मिनल, उसके लिए हमारा मीडियम होती है साइज। तो दिस इज व्हाट the terminals, if it is emitter, base or collector in either of the type of semiconductor, whether it is NPN or whether it is PNP, तो terminals basically differ करते हैं in the case of doping as well as in the case of size. So let's see about the symbol. This is what the description of the bipolar junction transistor. In this description we come to know if it is a transistor, it is having two junctions, it is having it is a three terminal device. What are those terminals? Basically emitter, base and collector. So let me draw the symbol for NPN and PNP transistor. So generally if we observe, dear students, we will found base, that means if it is a base, so it will be draw in this manner. बेस मतलब टेबल की तरह, एक टेबल जो कि बेस है, किसके लिए? फॉर द अदर टू टर्मिनल्स, एंड दैट इज व्हाट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली one terminal is here and one terminal is here. Similarly, हम जब सिंबल बनाते हैं फॉर द एनपीएन और पीएनपी, तो हम किसी एक पे एरो मार्क करते हैं, दैट एरो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, और जिस टर्मिनल पे एरो मार्क्ड होता है, दैट टर्मिनल इज व्हाट बेसिकली एमीटर, दैट टर्मिनल इज व्हाट बेसिकली एमीटर. So I am marking here the arrow on this terminal. Similarly, I am marking the arrow in this direction. मीन्स अगर आप फर्स्ट केस देखोगे तो इसमें एरो अपवर्ड्स मैंने ड्रॉ किया है, एंड इन द सेकेंड केस मैंने एरो डाउनवर्ड्स ड्रॉ किया है. मीन्स मैंने इसमें एरो डाउनवर्ड्स ड्रॉ किया है, एंड इन दिस केस मैंने एरो अपवर्ड डायरेक्शन में मार्क किया है. वी ऑल नो, अब हमें पता लग गया कि जिस टर्मिनल पे, दीज आर द थ्री टर्मिनल्स, जिस टर्मिनल पे एरो मार्क्ड है, दैट विल कॉल्ड एमीटर. तो ये हमें क्लियर हो गया कि दिस इज व्हाट एमीटर, और ये जिस पे ये दोनों रखे गए हैं, दैट इज व्हाट बेस. दैट इज क्लियर. And the remaining terminal is what? Collector. So we are clear about the terminals emitter base collector and emitter base collector for both the cases. लेकिन इसमें से कौन सा NPN है and कौन सा PNP है? How we will decide? We will decide by the direction of the arrow. और ये एरो बताता है कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन. मीन्स अगर ये एरो अपवर्ड्स है, दैट मीन्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. इफ इट इज डाउनवर्ड, दैट मीन्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. एंड वी ऑल नो डियर स्टूडेंट्स, आई नो दैट यू नो कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो आई विल राइट हियर P, हियर N, एंड द रिमेनिंग वन विल बी N, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव करंट की डायरेक्शन होती है. एंड सिमिलरली इफ इट इज डाउनवर्ड, सो इट विल बी P, दिस विल बी N, एंड दिस विल बी P. सो ऐसा अगर सिंबल आप बनाते हैं, दैट मीन्स दिस इज NPN ट्रांजिस्टर. इफ दिस टाइप ऑफ सिंबल इज यूज्ड
it will be PNP transistor. तो अगर NPN ट्रांजिस्टर है that means कि arrow will be towards emitter, और अगर वो PNP ट्रांजिस्टर है तो arrow will be from this emitter side, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, और अगर यहां मैंने पॉजिटिव लिखा है पॉजिटिव से निगेटिव, तो अगला जो आपका टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है दैट विल बी N. दिस विल नॉट बी P. NPP और PNN इज नॉट द कॉम्बिनेशन. किसी भी एक टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच करना है, कॉमन करना है इन बिटवीन द अदर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, आइदर N और P. तो बेस के लिए या तो P होगा या तो N होगा, और एमीटर और कलेक्टर के लिए सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होंगे, आइदर N और आइदर P. So I hope you come to know the symbol for this NPN and PNP transistor. So dear students, let me write the modes of operation for this transistor. Modes of operation. Modes of operation. So there are two junctions, emitter base and collector base. In either of the two category, either it is the case of NPN or it may be the case of PNP, एमीटर बेस और कलेक्टर बेस. तो इसी बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ ऑपरेशन. सो लेट मी राइट केसेस 1, 2, 3 and 4. These are the 4 cases. Emitter base junction, collector base junction, and this is what operation mode. So first, forward biased, second reverse biased, this is forward and this is forward, this is reverse and this is reverse, this is what reverse and this is what forward, this is what normal or active, this is what saturation, this is what cutoff and this is what inverse active. Dear students, these are the mode of operations for this transistor. ट्रांजिस्टर हमारे 3 टर्मिनल डिवाइस हैं जिनके पास 2 जंक्शंस हैं, एमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, चाहे वो NPN हो या PNP हो. तो हम उसी बिहाफ पे जब इनकी बायसिंग करते हैं, और बायसिंग हमें पता है कि बायसिंग 2 तरीके की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. तो हम उन 2 बायसिंग और 2 जंक्शंस को लेके 4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और उन 4 मोड्स में हमारा ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है. अगर दोनों साइड एमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन के अक्रॉस अगर फॉरवर्ड बायस है एमीटर बेस्ड जंक्शन के अक्रॉस और रिवर्स बायस है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन के अक्रॉस, मींस इसकी बायसिंग हम फॉरवर्ड में करते हैं और जब इसकी बायसिंग रिवर्स में करते हैं तो आवर ट्रांजिस्टर वर्क
in the normal mode or in the active mode. इस मोड को हम कहते हैं एक्टिव मोड, जब एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स होता है। लेकिन जब दोनों रीजन्स फॉरवर्ड में होते हैं, एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों फॉरवर्ड में होते हैं, तो हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है सैचुरेशन रीजन में। एंड इफ दोनों रिवर्स्ड केस में होते हैं तो द ट्रांजिस्टर वर्क इन अ कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में वर्क करता है। एंड इफ एक रिवर्स में और एक फॉरवर्ड में होता है तो ट्रांजिस्टर वर्क एज ए inverse active. Dear students, when we have to use the transistor in analog circuits as a amplifier, तो उस केस में we have to work our transistor in active region. And if we have to use the transistor as a switch, so we have to work our transistor in saturation as well as cutoff region. So depending upon the modes, we are taking the applications of the transistor. ट्रांजिस्टर को मैंने बताया कि अगर एनालॉग सर्किट्स में हमें यूज करना हो तो दैट ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए एम्पलीफायर, और जब डिजिटल सर्किट्स में हमें यूज करना हो तो वी कैन यूज द ट्रांजिस्टर एज ए स्विच. सो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिस्टर के डिफरेंट मोड्स हैं, जिन मोड्स में हम ट्रांजिस्टर को वर्क कराते हैं अकॉर्डिंग टू द बायसिंग, टाइप ऑफ बायसिंग. बायसिंग के टाइप से हम उनको डिफरेंट मोड्स में वर्क करा सकते हैं, आइदर इन एक्टिव और इन सैचुरेशन और इन कट ऑफ और इन इनवर्स एक्टिव. तो आई होप कि अबाउट द ट्रांजिस्टर जो मैंने आपको बताया, ट्रांजिस्टर दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि जब मैं फैट पढ़ाऊंगा, नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि टाइप है बीजेटी एंड फैट, तो यहां मैं बात बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं. If I am saying by somehow कि transistor, that means I am talking about the BJT. I am sorry for that. लेकिन transistor that means bipolar junction transistor. FET is also known as transistor. लेकिन जब FET पढ़ाऊंगा तो I will pronounce it like a FET. But if अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर बोलता हूँ, that means I am talking about the bipolar junction transistor. So we come to know the discussion that this BJT is a three-terminal device having two junctions. And among the junctions, combination of these two junctions, if we used the combination of biasing, we can operate the electronic device, that is what transistor, in different modes. And while operating in the different modes, we can take its application. So this is all for today. Its operation, its behavior, forward characteristic or transfer characteristic or reverse characteristic, whatever the characteristic involved with the transistor, we will discuss in our next video. So this is all for today. I hope you will take care of yourself. Thank you students. Thank you so much.